today we are going to start the chapter number 21, Sea Movements. In this chapter, we will learn what is sea movements, its a type, difference between waves and currents, and why the tides occur, and etc. So children, you must have seen lakes, ponds, or flowing water. You must have also have noticed that there is movement on the surface of water bodies. In the same way, the water of the seas and ocean too have movements. There are three types of movements of sea water: waves, current, and tide. So we will read about these three movements of sea water. तो चिल्ड्रन, जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड होते हैं, फ्लोइंग वाटर है, उसमें बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। इसी तरह से जो समुद्र का पानी होता है उसमें भी बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। तो ये मूवमेंट्स को थ्री टाइप से डिवाइड किया गया है: वेव्स, करंट एंड टाइड्स। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। Dear children, before starting to read the waves, I have to say you that you have to read the chapter deeply and carefully and word to word. I will give you only summary. Now let's start. The water on the surface of the sea moves up and down due to the effect of wind. This is known as waves. अब समुद्र का जो पानी होता है वो अप और डाउन होता है, तो इस और ये क्यों होता है? विंड्स के कारण, और इसे ही हम वेव्स कहते हैं। आप देख सकते हैं सी वेव्स इस पिक्चर में दिखाई गई हैं। ट्रेंच यहाँ दिया है, यहाँ पर क्रेस्ट दी गई हैं, और ये जो वेव्स है ये विंड के कारण अप एंड डाउन हो रही हैं। तो ये अप में क्रेस्ट है, ये डाउन में ट्रेंच बनाती हैं। These are the two parts of the waves. The first rises up is called crest and the lower part is called trench. The following are of causes of the occurrence of waves. The wind blowing over the sea causes ripples in the water and its move up and down. How big and waves become depends upon how strong the wind is. Sometimes due to earthquakes, volcanic eruptions and etc. the waves occur which are very destructive. Such waves are called tsunami. Tsunami is a Japanese word. We cannot forget the destruction caused by tsunami December 2004. अब जो सी वेव्स होती हैं वो विंड की स्ट्रॉन्गनेस पर डिपेंड करती हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी उतनी ही तेज़ी से जो सी वेव्स होती हैं वो क्रेस्ट और ट्रेंच बनाती हैं। कई बार अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन आदि बहुत सारी ऐसे डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट हो जाते हैं जिसके कारण वेव्स जो हैं वो बनती हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। जैसे कि सुनामी, हमने 2004 में दिसंबर में जो सुनामी आया था अर्थक्वेक के कारण, उससे हुए नुकसान को हम भूल नहीं सकते हैं। Now, warm currents. Big streams of water flowing regularly, constantly and in a definite direction on the surface or subsurface of the ocean are called currents. अब बहुत बड़ी मात्रा में बिग स्ट्रीम में यदि वाटर रेगुलरली कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में बहता है सरफेस पर या सब सरफेस पर ओशियन में, तो वह करंट कहलाता है। They are the most powerful of all the sea movements. सारे sea movements से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। Due to this, the water flows thousands of kilometers. Depending upon their temperature, the currents are of two types: warm current and cold currents. Now, warm current. The warm currents flow from low latitude or equatorial regions towards high latitude or poles. जो वार्म करंट होती है वो लो लैटिट्यूड या फिर इक्वेटोरियल रीजन से पोल्स की तरफ बहती है। दीज वार्म करंट्स मेक द सराउंडिंग एरियाज ऑल्सो वार्म। जिस जिस एरिया में आ जाती है वो सराउंडिंग एरिया भी गर्म हो जाता है, जैसे कि गुल्फ स्ट्रीम करंट एंड ब्राज़ील करंट, ये उसके एग्जाम्पल हैं। नाउ कोल्ड करंट. द कोल्ड करंट्स फ्लो फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड, that means poles to equator region, making the climate of the nearby area cold. For example, Labrador current and Canary करंट। अब जो कोल्ड करंट होती हैं वो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ बहती हैं, दैट मीन्स पोल्स से इक्वेटर रीजन की तरफ बहती हैं, और जहाँ जहाँ ये चलती हैं वो सारा एरिया जो है क्लाइमेट है वो कोल्ड हो जाता है। इसका एग्जांपल है लेब्रेडर करंट और कैनरी करंट।
अब ये जो करंट होती हैं वो किस रीज़न से बहती हैं, किस रीज़न से वो ओरिजिन होती हैं। तो पहला है द प्रीवेलिंग विंड, फिर है डिफरेंस इन टेम्परेचर, रोटेशन ऑफ द अर्थ, लैंड मास, सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। So first, prevailing wind. Prevailing winds blow in one direction. They cause the ocean water to flow in the same direction and these produce current. अब prevailing winds जो होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में बहती हैं और यही जो करंट प्रोड्यूस करने का कारण होती हैं, जो कि वाटर को एक ही डायरेक्शन में बहने के लिए हेल्प करती हैं। Now, difference in temperature. Ocean currents are also caused by the difference in temperature of the equatorial and polar regions. The warm water of the equatorial regions expand and flow towards the poles. अब टेम्परेचर में डिफरेंस होता है यदि, तो फिर ये जो करंट हैं ओशियन करंट, ये भी एक कारण होती है। टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ और इक्वेटोरियल से पोलर रीजन में यदि टेम्परेचर में कोई भी डिफरेंस आया तो ये वार्म वाटर है, ये टेम्परेचर को चेंज करता है और इसी तरह से कोल्ड वाटर भी टेम्परेचर को चेंज करता है। तो डिफरेंस जो होता है टेम्परेचर का, यह भी करंट को ओरिजिन होने में हेल्प करता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ड्यू टू विच द करंट्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर फ्लोज टुवर्ड्स द राइट एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब जो अर्थ का रोटेशन होता है वह भी करंट के ओरिजिन में हेल्प करता है। नाउ लैंड मास। व्हेन अ लैंड मास कम्स इन द वे ऑफ फ्लोइंग करंट ऑफ वाटर इन इट स्प्लिट्स इनटू टू एंड चेंज इट्स डायरेक्शन। अब जो लैंड मास होता है वह भी करंट को फ्लो होने में हेल्प करता है। सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। सम करंट्स ऑकर ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब कुछ करंट जो होती हैं वो वाटर की डेंसिटी के कारण भी ऑकर होती हैं। यू कैन सी इन द मैप ओशियन करंट्स and read this map very carefully. If you have any doubt, you can ask me in doubt class. We will read about the effect of ocean current in the next video.